can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा. Today we have the Kia Carens. Carens या Carens? I don't know. It's Kia Carens, I think it is. ये गाड़ी बहुत पॉपुलर हो गई है. अब इस सेगमेंट में गाड़ियाँ दो थी. ऑब्वियस सी बात है, इनोवा थी और ये है. And Ertiga I will not count in this category. I think इसका और इनोवा का डायरेक्ट टक्कर है. However, जिसकी ये गाड़ी है, अब हम उनको इनवाइट करेंगे, राइट, एंड हैव अ चैट विद हिम एंड फाइंड आउट. बट ये करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. आशीष. Hello everyone. Hi Via. Hi. Ashish, a little backstory about Ashish. Ashish is a businessman. He runs hospitals and there's multitude other businesses he's involved in, right? And he's also a family friend. Yes. Right? Yes. And the family goes way, way back. Right? अच्छा, आशीष एक बात बताओ, right? जी. ये आपने गाड़ी ली है अभी जून में, right? जून में, correct. Right. So, how did you come to this car? I mean, I know that uncle and all had the Innova. So we still have the Innova. Okay. Basically Innova 10 साल हो गए थे, 12 साल हो गए, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहते क्योंकि it's a very nice family car. Correct. It's an 8-seater, long drive, everything's very Comfortable nice. है. Comfortable है. But दोबारा तो Innova लेनी नहीं थी. Correct. दोबारा उसी तरह की कोई गाड़ी लेनी थी. Correct. So या तो Innova से ऊपर कोई जाते Fortuner, which is again a very big car. So we want some car, any car which is easily driven in the city, outside, anywhere, and 7-seater. Right. So in that segment, we only had either the Ertiga, which is Again, वो बहुत low segment चली जाती है, and then या तो Kia की एक और है Carnival, which is a big car. Limousine, हाँ, and it's not a family car. It's just a big car for highways. Right. So this was the perfect car. I remember Ashish और मैं off camera बात कर रहे थे, and Ashish said that I think the main of the there were two concerns when you were buying a car like this. Yes. Of course, you looked at the Gloster, you looked at the Fortuner, you looked at the the जो नई वाली Innova We थी. also have a Fortuner in the family. Correct. Yeah. तो नई वाली Innova also you were checking out, right? Yes. And I think the only reason you drove away from the new Innova was because बाहर से ठीक है उसको change किया है, लेकिन अंदर से उसके इंटीरियर ज्यादा नहीं रिफ्रेश थे. It was pretty much similar जो पहले की Innova थी. Correct. And also दूसरा point आप लोग का concern का ये था कि women in the family drive this car as well. Correct, absolutely. Right. हाँ. And you needed a car that basically city driving में भी उनको दिक्कत ना हो. basically. Comfortable drive, like easy drive, which is not so big. क्योंकि गोरखपुर जैसे या फिर किसी भी शहर में maneuver करना car is not easy. It's not easy. Like a Fortuner, you can't maneuver in a tier 3 city. Especially women panic quickly. It's not that I'm saying that women are bad drivers. Women are great drivers, but compared to the patience level, I think we hold. They get a little bit more finicky about things. Correct, absolutely. और उसका turning radius वगैरह it does bother at some point. फिर या तो parking. Second is also parking. Right. So like a big car like a Gloster, to park in a city is a big hassle altogether. So इसको तो कहीं भी कैसे छोटा मोटा करके लगा दिया. लेकिन Gloster या फिर even for that matter Innova जो घर का है उसका हमने देख लिया था कि नहीं, it's not an easy. It feels like a huge car. It is. So that's why we settled on to this one. अच्छा. It's a very nice purchase. अच्छा. Yeah. ये that I no doubt we have driven it for a while and we noticed that. अच्छा एक बात बताओ, of course I'm sure कि ये घर पे डिबेट हुई होगी, सबकी डिबेट हुई होगी, क्योंकि इनोवा तो फिर सबका मन हट गया था क्योंकि इंटीरियर सेम है. तो आई थिंक इट वाज द एप्ट टाइमिंग कि ये गाड़ी रिलीज हुई. आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू अभिनव and he was telling me this. He said वो तो एक टाइमिंग का वो था कि it released at the same time and then you guys went and checked it out, right? Correct. तो that's how you guys decided to get the Kia Carens. Carens इसको कहते हैं. Carens. I need to get that sorted part out. अच्छा, let's talk about what do you love about the car? It's an automatic. It's an automatic drive. There's nothing else which is
It's an automatic. It's an automatic car. I mean, you don't have to think. कुछ सोचना ही नहीं है. गाड़ी कहीं से निकाली, कैसे तो निकाली. Right. शहर में कोई गियर चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना. ब्रेक है, एक्सीलेटर है, कुछ नहीं है. कुछ नहीं करना है इसमें. अच्छा, June you bought this car. Correct. तो longest route क्या किया है इस car? Longest route is Lucknow. I guess Lucknow couple of times. ठीक है. And how's the driving, handling? Smooth. Butter It's smooth. very smooth. Right. और कितनी सर्विसेज करवा ली हैं अभी तक? अच्छा, दो हो गई हैं. हाँ जी. And what is the cost you're getting on average? I'm not sure, but it's not very expensive. It's not expensive. It's not I think expensive. it's under Compared to- 5,000 या under 10,000. Under 10,000. Under 10,000. ठीक है. दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूँगा. A lot of people will be asking this question is, and it's always one of the deciding factors in any vehicle we buy, right? Mhm. Mileage. It's not great. It's not great. It's not great. Right. Okay. And why is that so? Because so we have On an average, what are you getting? it's about 11, I guess. 11 is not bad, yeah. 11 is not bad, but compared to other cars which are giving like 15, 16, 11 is not is on the lower side. बट इसकी भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी ऑफ कैमरा आशीष. ये गाड़ी मल्टीपल लोग चलाते हैं. मल्टीपल लोग चलाते हैं इसीलिए. एंड ऑल्सो मतलब इसका एवरेज इसलिए भी डाउन है कि सिटी ड्राइव, मेनली सिटी ड्राइव. या and it's auto and it's not adjusted to one driver and it's not one single driver. There are 7 people who drive the car. 7 people, including drivers hai usme. Including drivers. And who have got their own way of driving the car. Yeah, multiple. So who are not used to driving in automatic. Right. उनकी ब्रेक खूब लगते हैं. Right. एक्सीलेटर बहुत तेज होता है. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज हम ये पूछेंगे आपसे कि in the end of the day, right, compared to Innova, we already have an Innova in the family, and you were looking at the newer Innova. What were the features that caught your eye? You know, compared to Innova, again, it's a smaller car. ठीक है. With the same comfort level. Right. So it's a 7-seater car. Right. So it's a family car. Right. And automatic is a very big factor in deciding. It's All the so one of the features, the welcome feature. welcome feature. Yeah, which we will try now, and you will show us how it works. Yeah. But main points मैं ये देख सकता हूँ कि इसमें front sensors आ रहे हैं, right? Front sensors इसमें front और back दोनों में आते हैं, right? And of course with luxury point of view, I've actually sat and हम आपको अभी उसका interior भी दिखाएंगे. Right. So overall comfort है, right? Very comfortable And- for driver and for the passenger. Right. Yeah. And it looks awesome as well. And it's got an air purifier for winters. Yeah. Yeah. That's a and यार आजकल के इंडिया पे स्पेशली पोल्यूशन को हाँ, लेकर उसके लिए otherwise I mean all the cars need to have an air purifier. Correct. It has an inbuilt air purifier. Right. Yeah. Right. That's no that's extra hassle. that's a key point where you don't have to worry much about it. Okay. Now I'm going to invite हमारे कुशाग्र and Aman, right? When they're ready, and Aman come into the frame. All right. You know, हम लोग जब भी बड़ी गाड़ियों का रिव्यू करते हैं या छोटी गाड़ियों का रिव्यू करते हैं, we do it as a team, and the reason being is because, of course, we're going to sit in the car and we're going to talk about the space, right? And we've just, this is a big car, this is a family car. Again, I will say, and मैं iterate करूँगा इस point में, Ertiga doesn't come in this segment, not according to me at all. I know it's a people mover, but Ertiga does not come in this kind of segment. इस segment में दो ही competitors हैं, Kia Carens and Innova. That's it. If you are looking for luxury, अब I know that Ashish did say कि Toyota Innova का अंदर से बहुत कुछ change नहीं हुआ है. But again, you can't defeat the fact that Toyota still has that premiumness. Yeah. That premiumness उसमें है. भले ही वो see Toyota is famous for this. Fortuner भी आई है, बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वही. Exactly. हाँ, SL6. I will not put it in the category. कितने का आती है वो? 13-14 तक टॉप है भैया उसका. ये है इसका टॉप कितना पड़ा आपको? 90. So नहीं आएगी ये. Again अगर हम ये तो बेस्ट है इसका. see what we can do is भैया देखिए लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ ये बेस्ट है. SL6 well, what we will do is we will again get Ashish back in the future and get the SL6. And let's actually do a comparison, है ना? Because I know for a fact that SL6 why it doesn't come in this category, Aman. उसके दो कारण हैं. उसके दो कारण ये है, पहले तो इंजन पावर, it will be under delivered, ठीक? और स्पेस इसमें ज़्यादा होगी compared to SL6. There will be no doubt about it. ठीक है? तो ऐसा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक सा अंदर फील होता है Correct. With the SL6, I've seen that because उसकी हाइट, इसका जब मैं भी बैठा था, इसका जो रूफ है ना, हेडरूम बहुत बढ़िया है.
SL6 में मैं बैठ चुका हूँ, उसका ना ऐसा फील होता है कि यू आर सिटिंग इन अ बॉक्स और ऊपर से ना किसी ने ढक्कन लगा दिया. Okay, I have another point to say. हाँ. Basically, we bought this car क्योंकि so I have an मतलब aged parents. हाँ. अभी 68, mom and dad Correct. 68. Correct. So they जैसे we have an Audi at home. Right. तो Audi आपको नीचे होके बैठना पड़ता है for an aged person. Correct. इसमें खड़े ही बैठ जाएंगे. Correct. खड़े. I mean Because it's at that level. It's a height उसका है. I mean for them it's perfect. उनको कोई stress नहीं देना है पैर को. As an aged person point of view, उनको stress नहीं देना है. Audi में हमेशा नीचे होके बैठना होगा. It's a lower car because it's sedan है. जैसे खड़े हो वैसे बैठ जाओगे. And SL6 में ये issue है. If we will put the SL6 and which we will do, हम दिखाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे. SL6 को जब हम इसके बगल में खड़े कर देंगे ना, this will be taller than the SL6, no doubt. Innova उसकी हाइट लगभग सेम है. Almost same. Maybe 1 इंच का फर्क है. Innova से ये थोड़ी शॉर्ट है. Innova का I feel थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है ना. हाँ, वो इसलिए मैंने बोला ना इंच का फर्क होगा. वो इसलिए क्योंकि Toyota अपने सस्पेंशंस को ना थोड़ा रेज ही करके रखता है. And that I found. Innova looks a little bit taller than it actually is. I've seen a Fortuner standing besides a Innova, and Innova is about this or this short than the Fortuner. So it is, I think, the suspension, the way they have built it. Okay, but anyways, now let's get into the car, right? And we'll talk to Ashish in the car, and Ashish will tell us the features and the luxury that this car brings along with it, right? चलिए अब गाड़ी में चलते हैं. बिजनेसमैन देखिए उसके आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे बिकॉज सुबह उठते ही पहले तो देखना है कि हमारे एड्स रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना. नहीं, एड्स के लिए देखता है कि एड्स आते हैं ना, तो एड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. बट एनीवेज, अच्छा आशीष चलो, नाउ वी आर इन द कार, राइट. सो ऑन द ऑफसेट यार, इसका जो इरफान ने इसके रैंडम निकाले थे, आपने देखे भी होंगे. इसका जो यार ये जो डैशबोर्ड है, द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर प्लस द इंफोटेनमेंट सिस्टम, इट्स ऑल सिंक्ड इन. This is one thing that looks really premium. Basically हर एक चीज जो है ना laid out है well enough. Correct. Right. तो इसका जो cluster meter, it's totally digital. It is digital. Completely digital. Completely digital. Yeah. Okay. और फिर आपका infotainment system है, right? क्या marriage advice है? Okay. Infotainment system, so you get map, navigation, और फिर आपका मीडिया. अच्छा, इसमें Android Auto and Apple CarPlay दोनों. ये दोनों. Okay. So you get that also. अच्छा, इसका inbuilt कभी यूज किया है? I'm sure you guys must be connecting with smartphones, or you using inbuilt navigation? Inbuilt navigation as well. You're using, Yeah, and yeah. it's accurate, It's accurate. and it's really good. It is very good. Okay. Yeah. अच्छा, तो यहाँ पे you get अच्छा USB Type C. USB Type C chargers. ठीक है. Normal और chargers, आपका 12 वोल्ट का ये हो गया. wireless USB, chargers. right. Yeah. पीछे भी And chargers हैं इसके. पीछे भी चार्जेस हैं. And ये आपका ये भी. हाँ, आर्म रेस्ट हो गया. ठीक है. अच्छा, one thing that I really love about this car is that it's got जो हमारी Asters में मिसिंग है यार, डिजिटल ORVM, है ना. तो ये डे एंड नाइट के लिए है. सो ऑब्वियस सी बात है कि as it dawns in the night ऑटोमेटिकली करता है. Automatic. सनरूफ थोड़ी छोटी नहीं देती, बिल्कुल. है ना. थोड़ी छोटी है. ये दिस मस्ट बी रियली दिस थिंग, है ना, कि ये देने की क्या जरूरत थी, फिर ये भी नहीं देते, है ना. पर ठीक है यार, आई गेस इट्स बेटर देन नथिंग. एटलीस्ट Innova doesn't even have that. Innova doesn't have that. Yeah. And that's something Toyota really needs to work on. They are so reluctant. They don't even want to put the moonroof in the Fortuner. वो कहते हैं तो सेफ्टी की वजह से. क्यों है? ड्राइवर निकलने के लिए. इसका इधर देना चाहिए ना, उधर दिया भी तो एक्चुअल में इसका बीच वाले काम क्या होता है पैसेंजर्स ना? निकल हाँ. सके. इसमें भी इसको मतलब यूजुअली कहा जाता है स्मोकिंग विंडो, जो छोटी सी पार्ट रहती है. Right. इसको स्मोकिंग विंडो ही कहते हैं. Okay. अच्छा. Okay. I didn't know. Sunroof है No, we don't encourage कि आप सिगरेट पी के गाड़ी चलाएं. That's not ड्राइवर it. के निकलने के लिए क्यों दिया है पता नहीं. अच्छा, इसमें कितने एयरबैग्स आते हैं? 6. 6 एयरबैग्स. एंड मतलब तो फिर इसको 3 स्टार कैसे दे दिया यार? नहीं समझ में नहीं. मे बी बॉडी का Maybe इम्पैक्ट जो पैसेंजर्स पे हो वो थोड़ा सा देखिए दरवाजे तो काफी हैवी हैं. हैवी है ना. बहुत ज्यादा. ज्यादा अब सामने की बॉडी का नहीं पता, मैंने बोनेट भी नहीं चेक किया. वो चेक करेंगे अभी. हाँ. अच्छा, दूसरी चीज, कप होल्डर यहाँ पे भी आ जाता है, और यहाँ पे ये Laptop? फ्रेगनेंस नहीं, द फ्रेगनेंस वाला. अच्छा ये अच्छा यहाँ पे सेपरेट है. अगर इरफान यहाँ पे दिखाएगा, सो आई एम श्योर सर्विस के लिए जब गाड़ी जाती है तो इट चेंजेस. ओह दैट्स ऑसम. ठीक है. स्टैंडर्ड के आप यहाँ पे लगाओ. Right. It has to move. It's built in. It's built in. Built in. So you get cup holder here also. Do driver side gets a cup holder? है या? This
so that's good. It's a cup holder उधर भी है. यहाँ पे 2 cup holders मिल जा रहे हैं. What is this? ये rocker किस लिए है? So this is अच्छा AC vents को close करने के लिए, open करने के लिए. Drive modes है. अच्छा इसमें 3 drive modes आते हैं. 3 Eco, drive modes आते हैं, Eco, Sports and Normal. and Normal. Yeah. ठीक है. And then parking ये वाला है इसका sensors के लिए. And then अच्छा ये Ventilated seats are the best. front वाले. दोनों, हाँ फ्रंट वाले दोनों. Ventilated. Wow. दोनों में. That's nice. And then अच्छा hill descent control भी है इसमें. That's also good. And of course automatic है. Sports इसमें आता है. Pedal shifters भी दिए. यार pedal shifters दे रखे हैं भाई. बताओ. Alright, I'll take that point. It's going into the video. हाँ ये ADAS इसमें ADAS नहीं होगा ना? नहीं ADAS नहीं है. देखो ADAS नहीं है. 5-star rated है. Oh moonroof. Okay, so the steering gets modes of course, and then अच्छा इसमें वो भी SOS भी है ना? You can call up the this thing. Can we try it? No, please no. No, we have tried in our Aster. They're very nice. They say, oh no problem. We're making a video. That's okay. It's all good. याद है हम लोगों ने ट्राई किया था एस्टर में बैठ के इसको फोन कर दिया था इमरजेंसी को. They were very nice. But anyways, so you get the volume rockers, seek track rockers, and your phone Bluetooth connectivity, and then वो तो आपका क्लस्टर मीटर के लिए है basically, right? Now driver side पे आपको मिल जा रहे हैं basically. अच्छा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी कर सकते हैं. है वहाँ पे बटन दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ करने के लिए, राइट? So now let's get back into back seat पे तो बैठे हुए हैं हमारे टीम बैठी हुई है. So let's get back and see the comfort levels, right? And I'll get Ashish also back in. So अब हम आ गए हैं back seat में, right? Back seat में again कुछ है, अमन है, अमन is in the middle. हाइट इसकी अच्छी है एंड आशीष इज सिटिंग उसके बगल में, राइट? सो अच्छा कुछ से शुरू करते हैं. कुछ व्हाट्स योर थॉट्स ऑन द बैक सीट? मतलब ये कुछ ज्यादा ही अलग बना दिया इस गाड़ी को, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे सेंस में. लाइक आप देखो यहाँ पे आपको मींस ट्रे मिल जा रही है, के लिए ट्रे मिल जा रहा है जैसे इंटरसिटी एसी चेयर का. उसके बाद इधर आपको पूरा टच स्क्रीन मिल रहा है यहाँ पे. एक बार आप कैमरा इसके बाद आप दिखाए ना, ये बहुत प्यारा सा यहाँ पे टच स्क्रीन मिल रहा है. बाकी ये बहुत ही नए तरह का और बहुत ही मतलब प्रीमियम सा फील देता है जो. अच्छा यानी कि इट इज ड्यूल जोन, राइट? ड्यूल जोन आप मैनेज कर सकते हैं. अगर आगे वाले अपना एसी कंट्रोल करना चाहते हैं वो करें, और पीछे वाले अपना कर रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. अच्छा अमन तुम बीच में बैठे हो, हम्प नहीं है उसमें? हाउ इज द कंफर्ट से, बट अगर बीच में मैं बैठता हूँ तो लेग स्पेस की प्रॉब्लम है. अगर बीच में बैठता हूँ, हाँ साइड में तो कोई इशू नहीं है, साइड में बट लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से बीच में तो प्रॉब्लम. बीच में, राइट? ओके, सो व्हिच मींस 5'9" के नीचे लोग आराम से बीच में बैठ सकते हैं. 5'9" के अबव थोड़ा सा मतलब रूम का दिक्कत है, बट आई एम श्योर कोई भी सेंसिबल लोग होंगे जो बाहर जाएंगे लॉन्ग ड्राइव्स में, यार 5'9" के ऊपर तो वो बीच में नहीं बैठेगा, राइट? So that's really good. So this is the back. अच्छा AC vents on the top है, on the this thing, और फिर आपको लाइट मिल जा रही है यहाँ पे और हैंड ग्रिप्स मिल जा रहे हैं यहाँ पे. इनफैक्ट पीछे भी लाइट्स भी हैं. हाँ अभी पीछे जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, अभी तुम लोग भी जाओगे पीछे, राइट? ओके, सो अदर थिंग इज आई एम नोटिसिंग बोस की बैजिंग. भाई स्पीकर सिस्टम इसका बोस का है, राइट? ऑल ऑफ इट. एंड हाउ मेनी स्पीकर्स आर देयर? Two at the back, two in the center, okay, two right there. All right, and you got two tweeters, and you got two tweeters. So total कितने हुए? 8. That's not bad, यार. That's not at all bad. Sound quality इसकी टेस्ट की है? Very nice. अभी टेस्ट कर लेंगे. Okay, we'll do that as well. All right. अच्छा दूसरी चीज कर्टन्स, किसी ने नोटिस किया? इसमें कर्टन्स, इसमें एक्चुअली कर्टन्स है यार. मेरा एक्चुअल कर्टन्स क्रेटा में देखे हैं ना. हाँ ये भी बहुत अच्छे फीचर, बट कूल है ये क्योंकि आप अंदर नीचे सनशेड्स. That's a very nice thing to have, right? Okay, तो अब हो गई हमारी बैक सीट का ये, ठीक? अब चलते हैं रियर, जो जिसको कहते हैं जिसको हेट करते हैं, थर्ड रो, जिसको सब हेट करते हैं. सो लेट्स टेस्ट द हाँ तो अमन तो जाएगा ही रियर सीट में. चलो So one thing me and Ashish just noticed while we were playing around putting the kids in the back,
यार ये भी सीट्स आगे पीछे आगे होती पीछे हैं। हो सकती है, मनूवर कर सकते हैं उसको। वाओ, तो इनोवा में नहीं है। इनोवा में नहीं है। स्टेबल है। आई नो, आई नो, इनोवा में ये नहीं है। नहीं है। This is good. So actually Kia did really work on that part of it basically, right? तो यानी कि again I will say this point कि 5'9" के बंदे आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, और अगर आपको 6 फुट का जायंट पीछे बिठाना है जैसे हमारे पास है, तो उसके लिए 5'9" के नीचे वाले लोगों को बीच में बिठाना पड़ रहा है ना? बट 6 फीट का बंदा पीछे क्यों जाएगा यार? 6 फीट के पीछे तो नहीं जाएगा। मैं तो आगे बैठूंगा। Okay guys, so अब आप लोग हैं जिसको कहते हैं ना cursed seat of the car, है ना? It is the cursed seat of the car. It is. And पता है वो short straw होता है, कौन जिसने short straw खींचा कौन बेचारा पीछे गया, है ना? गालियाँ पड़ती हैं, है ना, गंदी वाली। नीचे बैठना पड़ता है, हाँ, लेग स्पेस नहीं होता है। अच्छा, आप लोग पीछे बैठे, राइट? तो अगेन अब हम अमन से शुरू करते हैं, कुशाग्र, इसलिए क्योंकि अमन का तो चेहरा अब क्या है, तो अमन क्या ख्याल है? मतलब हेडरूम तो काफी बहुत बेटर है, मतलब बट वही है, लेग स्पेस कम है, बट यार वैसे भी प्रैक्टिकल आशीष ने एक चीज पे 6 फुट का बंदा पीछे, हाँ, आप वही कह रहे हैं ना कि मतलब आप सिस्टमेटिक बैठोगे तो आप हाँ एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट? एसी वेंट है ऊपर, हाँ। अब आते हैं कुशाग, तुम तो ये कहीं पे भी adjust कर सकते हो। कॉम्पैक्ट डिग्गी में बैठ जाएगा। सबसे लाइक ये गाड़ी का मतलब पीछे का ये जो साइड में आर्मरेस्ट है, ये बहुत ज्यादा सही अच्छा है। अच्छा, ओके, आर्मरेस्ट है। हाँ, ठीक है। पीछे आर्मरेस्ट भी है, मतलब आर्मरेस्ट आप कह सकते इरफान को हो। हम थोड़ा बीच में दिखा दें। अच्छा चलो, तो इसमें आर्मरेस्ट है, आप लोगों ने रैंडम्स में भी देखे होंगे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट से रखे हैं भाई, दोनों साइड है, बोथ साइड्स। ऐसे नहीं है कि कंजूसी है कि एक साइड दे दिया भाई शेयर कर लो, कंपनीज तो हाँ, मतलब शेयर कर लो, शेयर, है ना? सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार, एंड कंफर्टेबल। कुशाग्र की हाइट का बंदा, मतलब 5'9" के नीचे तो बंदा आराम से बैठ जाएगा भाई, कंफर्टेबल, राइट? सो यस आशीष, आई थिंक आई गेट द पॉइंट। जब आप लोगों ने ये गाड़ी डिसाइड की थी लेने के लिए, आई गेट द पॉइंट, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। ओके, सो एक और फीचर है इसमें, जैसे बताइए। इनोवा में हाँ, हमेशा बीच वाला सीट वाला कंट्रोल कर रहा है कि ये लोग कब निकल रहे हैं, राइट? आई मीन सो ही हैज टू पुल द लीवर एंड राइट, उसमें इसमें सिंगल बटन है, राइट, ओके, सिंगल बटन, ये ये सही है। देयर वी गो, मैजिक। आजो बाहर आजो। एक चीज और, हाँ। आप क्या इसको कैप्टन सीट से बना सकते हो, ये सेंटर वाले नीचे कर? नहीं, आई डोंट थिंक कैरेंस में नहीं है, नहीं, बिकॉज ये जो कप होल्डर्स दिए ना पीछे, आई थिंक ये नीचे जाता है। हाँ, ये वाला पार्ट जाता है, हाँ, ये जाता है, ये जाता है, ये जाता है, ये मिडिल कैप्टन सीट्स बन गया। हाँ, सो ये यानी कि वो बीच वाला भी नीचे जाता है, तो आई विल जस्ट पुट इट बैक अगेन, राइट? तो अब इसको थोड़ा रिक्लाइन कर देते हैं। तो ये आपके बीच में भी बेसिकली यू हैव कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट कप होल्डर्स। अच्छा, अब एक मजेदार चीज है जो आशीष अभी दिखाएंगे, एंड द बच्चा लोग विल हैव टू बेयर विद अस 2 minutes, क्योंकि वो पीछे बैठे हुए हैं। डोंट यू थिंक दिस शुड हैव बीन आगे, नॉट पीछे? नॉट रियली, व्हाई आगे? अब आगे जो ड्राइवर है वो तो सब एडजस्ट कर सकता है ना वहाँ से। इसमें एडजस्ट क्या करना है? इसमें बेसिक प्योरिफिकेशन है, ओके, देयर इज नो नीड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एनी Right. एनी सॉर्ट, राइट। या तो अगेन वो पीछे बैठा जो बंदा है वो बेचारा बैठ के ऑन कर देना यार उसको जरा। डोंट यू थिंक दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड? It is. I mean, but then you have what? How many things do you want in front? How many? I think so the control could have been there, yeah, integrated with the Yeah. infotainment system. Yeah. उसके साथ integrate कर सकते थे. करेक्ट, But yeah, that's a negative. because point. that has taken a little bit of space basically। अगर आप सोचो कि इस पे आप लोग को ट्रे मिल जाती है खाने पीने के लिए, Correct. Single है ना? मिल रहा है. and but that could not be a negative. I'm sure the engineers thought about this really well. But again, in my opinion, in my humble opinion, I don't think यार ये पीछे होना चाहिए था, I think ये आगे होना चाहिए था। स्पेशली उन केसेस में जब केवल ड्राइवर हो गाड़ी में। करेक्ट, हाँ, वो so किससे he needs. हाँ, उसको ऑन करना है उसको तो on करना, बेचारे off को करना। गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, उतर के आके ऑन करना पड़ेगा, एडजस्ट करके फिर वापस जाके बैठ। So I'm sure Kia engineers, if you're watching this video, please यार, I mean this was kind of stupid, but एटलीस्ट कंट्रोल आ गया। Control आगे दे. yeah, I mean you could have put it at the back. Integrated with the infotainment Correct. system, उसी से कर सकते थे. Correct. करेक्ट, नॉट एन इशू। चलो अब हम बच्चे लोग को रिलीज करते हैं और बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की।
but you still have to अच्छा press. इसमें is it No. okay. अच्छा you have to press it, right? Yeah. Okay. And it's a very good feature. I'll tell you why. Okay, one thing before Ashish tells us that feature, we were like idiots trying to figure out how to open the boot of the car. It's okay, you know, we are all idiots somehow. Anyways, हाँ Ashish आप बताओ. 2017 में I was in Delhi हाँ. with my Innova. हाँ. तो उसमें ठक गैंग ने जो है मेरे सामान चोरी कर लिया. कैसे चोरी कर लिया? गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम उसका ऑन था. ठीक है. ड्राइवर आगे निकला, चोर ने पीछे से गाड़ी से सामान निकाल लिया. बट इसमें इट इज ऑटोमेटिकली लॉक्ड. राइट. It is locked. I mean, until the time you actually don't release it, वो तब तक ये खुलेगी नहीं. Yeah, okay. Yeah, because मैं भूखी हूँ safety के लिए. I think वो safety के लिए because पीछे भी passengers बैठे हुए हैं. So in a running car also you can't open the boot until the car is locked and closed and shut. Or even if the car is on standby and it's still an engine. It's an engine. But yeah, no one can actually open the car, which happened with me. I mean, yeah. होता है यार. ये हो चुका है यार. मेरा तो पूरा बैग चोरी हो गया था. जैज में से MacBook and iPad. Both. Same. So till the time someone's actually manually unlocked it's going to be locked. अच्छा, दूसरी चीज, अब हम लोगों ने बूट खोल लिया है. अब we'll just push the seats नीचे हो जाती है ना. तो ये हो गया and ये हो गया. अच्छी खासी बूट स्पेस है यार. So even if you are traveling, है ना, मतलब even if you are traveling, और वो seats भी अच्छे से हो जाती हैं. So it's a good split यार. It's really a good split. अच्छा, यहाँ पे 7 सीटर के हिसाब से भी इतनी स्पेस बहुत ज्यादा है. मतलब बहुत कम कार्स देती हैं. It is okay. It's really good. अच्छा, इसमें आशीष, इसमें आपका टायर कहाँ जाता है? नीचे होगा. नीचे. अच्छा, it's नीचे. No, I think it's here. हाँ, टायर is right under the car. So यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस के लिए दे रखा है. मतलब there is a hidden compartment basically, right? अच्छा आशीष, जैसे आपने बोला ना कि आपने ये people mover इसलिए लिया क्योंकि लॉन्ग जर्नीज के लिए जाते हो. तो let's say अब there are 3 passengers in the middle and then there are 2 in the back. Yeah. Right? Yeah. तो उसमें स्पेस मतलब कम होती होगी. स्पेस उसमें कम है उसके हिसाब से. लॉन्ग जर्नी के हिसाब से लगेज के लिए with 7 people luggage it's very tough. It's very tough. तो लेकिन उस इंस्टेंस में does that make you feel? बट वो तो इनोवा में भी नहीं है यार. इनोवा में भी बूट स्पेस इसके बराबर ही है. इसी के बराबर. हाँ, वो मैंने देखा है. The width is it's इतना same है. और इनोवा में भी वही कम होता है. अगेन वो 7 सीटर में फिर आप लगेज भूल जाओ. अगर 7 लोग वो तो फिर अपने थैले में अपना सामान लेके जाए. छत पे रखो या थैले में अपना सामान लेके जाओ. वही है. But again, I don't think 7 of you must be traveling all at once. Right? No. It's a maximum 5. Yeah. Maximum 5, maximum 6 travel करते होंगे. Correct. इसमें एक चीज आप कर सकते हैं to save space. That even if one seat को आप raise भी कर दो, then you have complete space. Complete space फिर भी रहती है to put सामान in there. So यार, स्टोरेज में मामले में it is really good. अब हम वापस कर दे रहे हैं ना सीट्स को, नहीं तो फिर आशीष बोलेगा मेरी गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं और सीट्स को लिटा दिया पूरा. Now we are looking at the engine. So अगर इरफान थोड़ा आगे आएगा, basically again one thing I'm finding as standard, guys, all car companies are now shifting to having a safety barrier between the engine and the front body. And that is because इतने इम्पैक्ट्स हो चुके हैं फ्रंटल से. लगभग जितनी भी आशीष हम लोगों ने रिसेंटली गाड़ियाँ रिव्यू की हैं उनमें ना एटलीस्ट आपके जो फ्रंट हैं और नहीं घुस नहीं जाता है. बट पहले की अगर गाड़ी हम खोलते थे तो डायरेक्ट इंजन आ जाता था. यहाँ से इंजन आ जाता था. बट व्हाट आई स्टार्टेड टू फाइंड दिस अ न्यू ट्रेंड कि देयर हैज टू बी अ बैरियर ताकि कुशनिंग हो और फिर इंजन थोड़ा पीछे कर दिया इन लोगों ने. सो दैट्स फॉर सेफ्टी. 6 लेयर्स दे रहे हैं वो. एस्टर हैज 4 लेयर्स. इट्स गॉट नहीं हो नहीं सकता है. एस्टर में 4 लेयर्स हैं. हाँ. सो दैट्स गुड. सो इवन किया हैज really worked on that. Other than this is a turbo engine, right? 1.4. तो ये डीजल है या पेट्रोल? डीजल है. Okay, alright. Do you get that engine noise जब गाड़ी ऑन होती है? हल्की सी. Right. Alright. That's diesel यार. That's pretty much. But other than that यार वो है तो वही. But I'm very impressed. I was not expecting this. I was expecting खोलो. अब मैं बताऊं क्यों अर्टिगा इसके और XL6 इसके कैटेगरी में क्यों नहीं आती हैं. क्योंकि उसका आप खोलो ना होल्ड, इंजन सामने ही है.
ये गाड़ी जो है ना, इनोवा में भी ये है, इनोवा ऑल्सो नई वाली जो इनोवा है उसमें ये फ्रंट में है. सो दिस इज अ गुड सेफ्टी फीचर टू हैव, राइट? चलो लेट्स क्लोज अप द हुड एंड लेट्स do the closing now and final verdict, and because Ashish has to travel. Alright, तो हम लोगों ने आपको इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सब कवर करके दिखाया है, and we'll go with opinions now and we'll start all the way from, I will leave Ashish till the end because Ashish owns the car, right? तो he of course वो कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा, बोलेगा भी तो बहुत ही कम बोलेगा. So we'll start with Aman. Aman, भाई bike is to you. Now you tell me your point of view. भाई पकड़ लो. एज अ 7 सीटर बहुत ही बेस्ट है, मतलब अपने सेगमेंट में. और बट कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, जैसे कि टायर्स. टायर प्रोफाइल थोड़ी सी मेरे हिसाब से 17 इंचेस दे सकते थे. और सनरूफ, जो सनरूफ नहीं है वो क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता. ड्राइवर्स और बगल वाले पैसेंजर्स के लिए वो होने चाहिए बीच रो में. और फिर आप कह सकते हो बिल्ड क्वालिटी जो 3 स्टार है. आज के टाइम अगर कुछ नहीं तो 4 तो देना चाहिए, क्योंकि अब जो आ रहे हैं 2019 या 20 से जो भी कार्स आ रहे हैं वो लोग अपना ट्राई कर रहे हैं कि या 4 या तो 5 निकाले ही निकाले. और अभी के हिसाब से 3 is too less. और बॉडी वेट, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी मैंने इसका जो डोर है काफ़ी हैवी है, नो डाउट उसमें बहुत ही हैवीनेस है. बट कहते हैं ना, जब आप क्लोज कर रहे हो तो ये पूरी गाड़ी हिल जा रही है. तो मे बी वो बॉडी वेट का ही इशू है. उसके पार्ट्स. सो भैया, जैसे कि आप लोग ने बोला कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा लाइक डीमेरिट्स हैं, तो ऐसा नहीं होता लाइक ये बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बट सेफ्टी रेटिंग कम है गाड़ी की. जैसे हम लोग दरवाजा अभी बंद कर रहे थे तो गाड़ी लिटरली फील हो रही थी कि हाँ इट्स हैवी. बाकी टायर्स की बात करो, हाँ भैया थोड़े से मतलब छोटे लगते हैं टायर्स. बाकी तो भाई गाड़ी तो किया है अच्छी गाड़ी है. So I'll give my point of view on this, and see, everyone is right and everyone is entitled to their opinions, और हर कोई अपना अपना opinion लेके चलता है. And for me, working with cars and living with cars for so long, I would say that this car is value for money, and I'll tell you why. See, if you're buying a car like this, your mindset is not going to be कि आप इसको 120-130 की स्पीड पे हाईवे पे रन करें. क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो, आप वो फैमिली के लिए ले रहे हो, पीपल मूविंग कार है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि वो रेस करेगी या ड्रैग रेस करेगी. ओके, हालांकि ड्रैग रेस किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी गाड़ी में नहीं करना चाहिए. बट सी, आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी तरफ से इसमें नेगेटिव सिर्फ एक है, एंड आई थिंक किया नीड्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट. Yes, it's a people mover, and seriously, you guys have built a very good quality car, which has enough space for adults and families to travel in. However, and I'm impressed, and kudos to Kia, because I will be tagging you in this video. Kudos to you guys. You guys thought of something that no car manufacturer does for the rear passengers sitting right in the back. That is seat belts. That's very, very impressive. एक point मैं और कहना चाहूँगा इसमें कि you guys, I don't know how you guys achieved the 3-star rating. I think you should have received at least 4.2. I think आप लोग, you're using light metal. Maybe just try to beef up the car with using a little bit heavier metal to do that. And I will agree with Aman's point कि गाड़ी का डोर बहुत हैवी है, लेकिन उसको जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो गाड़ी हिलती है. But again, mind you, I will also take Kushag's point on view and point. This is not a racing car, so people are not going to drive in that kind of style or that kind of way, right? It is a people mover car, so people are going to drive it sensibly. Maximum आप इसके और मैं इसके बाद आशीष का point of view लूँगा. क्यों? क्योंकि आशीष is living with this car and there are 7 people in his family, including drivers, that drive this car. And I'm sure, जितना मैं इस family को जानता हूँ, none of them drive above 100. That is what I can guarantee you that वो नहीं करते हैं, right? तो 100 की स्पीड के हिसाब से अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो this is not a bad buy, right? And especially for far too long, Toyota had a monopoly in this segment. And finally that monopoly is broken. Of course, yes, Innova को safety rating में थोड़ा ज़्यादा मिल जा रहा है, but you have to remember, again, Innova is also people mover, so if people are driving like stupid above 100,
then I think you guys don't need to be on the roads. You guys need to be sitting at home. या किसी और को गाड़ी दे दो जो 100 की स्पीड पे चलाए, क्योंकि ऐसा इंडिया में, पैन इंडिया में यूनिवर्सली, मतलब जर्मनी का एक एक्सेप्शन छोड़ के, ऑटोबान उसको कहते हैं, ऑटोबान में कोई स्पीड लिमिट नहीं है, बट यूनिवर्सली जितने भी हाईवेज हैं उनमें स्पीड लिमिट सेट है 100. आपको कोई नहीं बोलेगा 120 पे चलाओ, राइट? ऑटोबान, yes, is a highway, only highway in the world that has no speed limit. Okay, so unless you're living in Germany and you have the money to go and travel in Germany, and if you have the money to go and travel to Germany, then I'm sure you'll have the money to buy a Mercedes and then drive that Mercedes on autobahn. But please, Indian roads को खराब मत करो. Keep it safe for our children. Keep it safe for our families. ठीक है, क्योंकि बहुत सैड, दुखित, हमारे भी कॉमन फ्रेंड्स में से कुछ 2 दिन पहले कुछ एक हुआ है. इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि यंग जनरेशन को ये लगता है दे आर बुलेट प्रूफ. यू आर नॉट बुलेट प्रूफ, राइट? यू आर गोइंग टू डाई. इफ यू आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग फॉर रिस्क एंड ग्रांटेड, यू आर गोइंग टू डाई. दीज व्हीकल्स आर नॉट रेसिंग कार्स, राइट? इतना ही मन कर रहा है, एक और आइडिया देता हूँ, BIC बुक कर लो, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा. नोएडा में है बहुत इंटरनेशनल सर्किट, जाओ उसको बुक कर लो, पूरे दिन घिसते रहो यार गाड़ियों वहाँ पे. कितनी स्पीड में? 10,000 रुपीज़ में आपका पूरा हो जा रहा है, राइट? हम लोगों ने पूरी सीरीज वहाँ पे शूट की है भाई. हम लोगों ने इसको बुक किया था 3 महीने के लिए. इट टुक 3 lakhs. ना, इट्स नॉट एक्सपेंसिव. 3 lakhs एंड वो BIC हमारे लिए खुला हुआ था भाई. सो इन द एंड ऑफ द डे गाइज, इतनी ही अर्ज आ रही है ना, तो यार प्लीज डोंट डू इट ऑन दिस इंडियन रोड्स. टेक इट टू BIC, जाओ पैसा थोड़ा खर्च करो. जब पैसा खर्च करोगे ना, समझ में आएगा कि सेफ्टी क्या होती है, राइट? एनीवेज, ओवरऑल आई विल रियली recommend this car. I will. Why? I will not go for safety. I will not take safety in mind because हल्ला बहुत मचता है safety, safety, safety. But remember यार, this is a people mover. वैसे भी आप इसको 100 के ऊपर नहीं चलाएंगे, राइट? और अगर आप चला रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, राइट? और हाँ, I will agree on one point, ठीक है, क्योंकि कुशागर के दिमाग में आ रहा है यार 100 की स्पीड में फिर किसी ने आके हमें ठोक दिया तो कैसा एग्री. तो उसकी वजह से आई विल अर्ज एंड रिक्वेस्ट किया टू प्लीज थोड़ा अपना बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करो, क्योंकि इवन इफ द ड्राइवर इज सेंसिबल है ना, ही कैन नॉट टेक गारंटी फॉर अदर पीपल ऑन द रोड, राइट? अब आपके अगल बगल 5 स्टार चल रही है. करेक्ट 5 स्टार 4 स्टार करेक्ट. अच्छा, अब having said that, we're going to take the final statements from our owner, because of course he's heard 3 different people and 3 different people के अलग-अलग अपने opinions सुने हैं, right? Now he will, because he's living with the car, I will give him his moment to actually talk about what he feels and what he looks at, right? Okay. All right. So as he said, it's a family car. It's not a driving racing car. ये आराम से अपना धीरे-धीरे चलने वाला, शहर में मनूवर करके चलने वाली गाड़ी है. So long range के लिए अच्छा है, but it's not a driving racing car. So you have, I mean, because there are so many features which you saw, so it's built for family. Be it at the back seat जहाँ वो अपना मनूवर कर सके, lights और AC, ये वो सेंटर में सारा सब कुछ, and आगे के लिए, ताकि family, बच्चे, everyone combined, they enjoy. I mean, let them have their own comfort, let them have their own freedom in every sense possible. That's how I feel this car is. Yeah, That's it. that's okay. One other thing I will say, and this is personally me to you, माइलेज ये फिर भी बेटर दे सकती है. I think because 7 different people are driving the car. माइलेज निकाल निकाल रहे हैं. So again, I think it is not the car. See, any car. It is not the car's fault. Yeah. See, I will say this. Mileage you can take out of any car. It's Correct. about How you drive it. how you drive it. And other एक मेन पॉइंट लोग भूल जाते हैं, जब आपकी फैमिली में 7 डिफरेंट लोग इस गाड़ी को चलाएंगे, उनका ड्राइविंग स्टाइल अलग होगा. लाइक आशीष सेड प्रीवियसली ऑल्सो कि ड्राइवर्स के हाथ में जब गाड़ी आती है तो वो एक्सेलरेट बहुत जल्दी करते हैं, ब्रेकिंग बहुत हार्ड करते हैं, राइट? सो ऑटोमेटिकली खड़ी आता है. एग्जैक्टली. और अगर ये चला रहे होंगे, ये अलग तरीके से करेंगे. एंड इफ भाभी इज ड्राइविंग, दैट शी विल ड्राइव डिफरेंटली. If Akanksha is driving, she'll drive different. Everyone will drive different ways, and they have different ways of maneuvering the car, right? Correct. So don't worry about mileage. See, mileage is, yes, I know it is a selling point. I know everyone goes crazy, and we will make a video on this because MG Astra का Grand Tour, जैसे आपको पता है कि Series 2 आने वाली है, लेकिन उससे पहले अमन, मैं, अंकित, इरफान, इनफैक्ट हम सब MG के साथ बैठेंगे and we'll discuss. हाँ, और हाँ सॉरी, कुशाग्र भी बैठेगा. अब कुशाग्र, हम लोग सब बैठेंगे. वो इसलिए बैठेंगे क्योंकि वी कवर्ड 3,100 किलोमीटर्स एंड आई गॉट 16 to 17 का माइलेज मिला है भाई उससे,
right? And single driver. So we need to talk about these points and we will touch on that. Mileage, यार हर कोई माइलेज कहता है भाई. माइलेज जो एक चीज होती है ना, क्लेम्ड होती है ना कंपनी से, भाई उसके नीचे जाते हो तो आप जाके कंपनी के पास जाके खड़े हो जाओ, ये नहीं मिल रहा हमको, आपने बोला था कि ये मिलेगा. Then again, have you self checked yourself and said कि आप ड्राइविंग कितनी सेंसिबली कर रहे हैं, राइट? पता है अभी माइलेज दूसरी कंपनीज कैसे दिखाती हैं, लाइक वो बेस मॉडल लेती हैं जो सबसे हल्की गाड़ी होती है, इसमें फीचर्स कट कर दिए रहते हैं, गाड़ी का वेट कम हो गया, एलॉयज नहीं रहते हैं गाड़ी में, जो बेस मॉडल होते हैं जनरली उस पे ये लोग एवरेज निकाल करके वो क्लेम करते हैं कि हाँ दिस इज AR correct. And that is fair point. Actually, Kushagra is right. Most manufacturers do that. They will lighten the car up so aggressively ताकि कम से कम ideal conditions, ideal like straight road, ideal conditions. हाँ, but ideal conditions क्या है? अब जब actually we covered this 3100 यार, उसमें that is ideal, right? But MG का क्या है, एस्टर ने उन्हें इतना ही क्लेम कर रखा है कि 70 में, तो उसने दे रही 70, मेरी देती है. नहीं, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ. देख, MG के साथ कोई भी कार मैन्युफैक्चरर होता है, आशीष इज राइट इन दिस पॉइंट, कोई भी कार मैन्युफैक्चरर होता है वो कोशिश ये रखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे गाड़ी चलाए माइलेज के लिए. एक्चुअली इंडियन रोड स्ट्रेट तो नहीं है, पहाड़ हैं, ठीक है, सामने गाय भैंसे हैं, राइट, सामने बाइक्स वाले हैं, ब्रेक लगना ही लगना है, राइट. वो जो टेस्टिंग करते हैं वो टू टेक आउट द माइलेज का जो नंबर्स और फिगर्स निकालना होता है वो टेस्ट करते हैं अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में. जिस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो एक्सटर्नल पार्ट्स को नहीं लेते हैं, दे डोंट टेक दैट फीचर्स और दैट एक्सटर्नल इश्यूज ऑन हैंड, दे आर जस्ट डूइंग इट इन स्ट्रेट लाइन. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये भी स्ट्रेट लाइन से चलाते हैं कुछ नहीं आता है. But anyways, on that lighter note, we will close the video now. And जाने से पहले please subscribe, like, share, comment और वो घंटा भी दबा दीजिएगा. We will see you in the next video. Until then, bye.